Good morning everyone. Today we are going to study chapter 7 conditional statement in Python. In this chapter we are going to study about conditional statements, if statement, if else statement, if else statement and Python indentation. So first we have to know what is a Python. Python is a high level interactive and object-oriented scripting language. It was developed by Guido van Rossum in 1980s at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science. What is a Python? Python is a high-level language. We have already studied in class 6 that what is a high-level language. Okay. So Python is also a high-level language which is developed by Guido van Rossum in 1980s and at National Research Institute for Mathematics and Computer Science. Its first version was released and implemented in 1991. First time for common people or for common developer इसे रिलीज़ किया गया था in 1991. Its high-level built-in data structure combined with dynamic typing make it very attractive for rapid application development. Today, as you see, so many apps are on Google Play Store. So most of the apps are created by Python. Python is simple and easy to learn. Python is very simple and easy to learn. Those who are not in a part of developers or those who are not a developer, they can also understand Python and make a app by using it. Okay, this is a symbol of Python. Now control statement. What is a control statement? A program is usually executed in a sequential manner. As you know, when we run a program, it have to be in a sequential manner. Otherwise, you cannot run an application on any computer, any PC, any mobile. Okay, but if you want to skip or repeat certain lines in the program while execution, you use control statement. But sometimes what we have to do to repeat any execution, कभी कभी हमें प्रोग्राम को रिपीट करना पड़ता है. तो जो प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं रिपीट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट. ओके, एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन. पाइथन हमें पता चल गया, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है ये हमें पता चल गया. सो इन दिस चैप्टर we are actually going to study about the control statements in Python. Next is conditional statement. As you already know, there are some statements. While using flow chart, जब आप फ्लो चार्ट को यूज़ करते हो कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर होता है किसी भी प्रोग्राम का. सो व्हेन यू आर रनिंग अ स्टेटमेंट बाय यूजिंग इफ एल्स, ओके, जब आपको दो चीज़ में से एक चीज़ को सेलेक्ट करना होता है, देन यू कैन से दिस इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन. वो स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं, दीज आर नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट. These statements transfer the flow of program to the specific location on the basis of condition expression outcome. जो कंडीशन एक्सप्रेशन आउटकम होता है उसी के बेसिस पे वो प्रोग्राम को रन कराता है. ओके, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग एज ईच डिसीजन इन्वॉल्व द चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, दैट इज ट्रू और फॉल्स. तो बेसिकली इन कंडीशनल स्टेटमेंट व्हाट वी हैव to choose between true and false statement. Okay, so let us understand with the help of an example. Here you can see a flow chart. In this flow chart, you suppose you want to check whether the entered year is a leap or not.
Here's a flow chart, and in this flow chart you have to check whether the entered year is leap year or not. So finding a year is leap or not is a bit tricky. Okay, अगर आपको विदाउट कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर विदाउट कंप्यूटर कोडिंग अगर आपको बोला जाए यू हैव टू फाइंड अ लीप, दिस इज़ अ लीप ईयर और दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, सो इट इज़ बिट ट्रिकी. बट when I am giving you a code and you have to run between few years, अगर आपको कुछ ईयर्स दिए जाएँ और इनके बीच में आपको पता लगाना है कि दिस इज़ अ लीप ईयर और नॉट, so what you have to do, we generally assume that if a year number is evenly divisible by 4 is leap year. हमें पता है कि कोई भी ऐसा ईयर नंबर अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा. बट इट इज़ नॉट द ओनली केस. अ ईयर इज़ अ लीप ईयर इफ़ इट इज़ इवनली डिविजिबल बाय 100. सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप लीप ईयर को 4 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा, बट इसके और भी ज़्यादा केस होते हैं. फॉर एग्जांपल इट इज़ इवनली डिविजिबल बाय 100, वो 100 से भी डिविजिबल होता है. इट इज़ डिविजिबल बाय 100 दैन इट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 400. 100 से डिविजिबल होने के बाद वो 400 से भी डिविजिबल होता है. एंड एक्सेप्ट दिस ऑल अदर ईयर्स इवनली डिविजिबल बाय 4 आर लीप ईयर. और इनके अलावा जो ईयर्स होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो सारे, जितने भी इवनली डिजिट्स होती हैं वो सारी 4 से डिविजिबल होती हैं तो वो लीप ईयर होती हैं. ओके, तो उसके लिए यू कैन सी अ फ्लो चार्ट. फर्स्ट स्टार्ट के लिए आपको मालूम है हम ओवल शेप का यूज़ करते हैं. देन हम इनपुट करेंगे अपना ईयर. ओके, तो यहाँ पे येस और नो दैट मीन्स कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है. तो दिस इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट. जहाँ पे भी आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो जहाँ पे येस और नो और ट्रू और फॉल्स और इफ़ और एल्स में से आपको चूज़ करना है, देन दिस इज़ नोन एज द कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, तो इनपुट के बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ गए. अगर आप 400 से डिवाइड कर रहे हो तो भी वो लीप ईयर है, 100 से डिवाइड कर रहे हो तो भी वो लीप ईयर है, एंड 4 से डिवाइड कर रहे हो तो भी वो लीप ईयर है. ठीक है, तो जब आप इनपुट डालोगे इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, ठीक है, तो वो येस की तरफ जाएगा एंड आपके लीप ईयर को प्रिंट कर देगा. ओके, और वहीं पे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा. बट अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो आपका जो इनपुट है वो नो की तरफ जाएगा एंड प्रिंट करेगा नॉट अ लीप ईयर. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, that's it.